کہ وزیر اعظم صاحب نے کل فرمایا کہ بجلی کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بجلی کی قیمت ابھی اتنی نہیں بڑھی کہ ملک گیر کامیاب شٹر ڈاؤن ہو سکے۔ میں پاکستان کے تاجروں کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ قوم کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اگر آپ 34 کروڑ بجلی کے مفت یونٹس بند نہیں کر سکتے، اگر اشرافیہ اور مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کا خاتمہ نہیں کر سکتے، تو قوم کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں، آپ عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی مہنگائی اتنی نہیں ہوئی، یہاں قوم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ بجلی کے بل دینے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ میں وزیر اعظم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے غصے اور غیظ و غضب کو دعوت نہ دو۔ یہ قوم اگر کل تو شٹر ڈاؤن پرامن کرے گی، کل پہیہ بند کر کے دکھائے گی، لیکن وزیر اعظم صاحب جس طرف حالات جا رہے ہیں، پھر آپ کے سیکیورٹی کے کانوائے ہوں، آپ کے پروٹوکول ہوں، پھر قوم ان کا بھی پہیہ بند کر دے گی۔ پھر آپ کانواؤں کے ساتھ شہروں میں نہیں گھومیں گے، محلات کے اندر عمرہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس قوم کے پیمانے صبر کو لبریز ہونے سے بچائیے اور بجلی، پیٹرول کی قیمتوں اور ظالمانہ ٹیکسز کا خاتمہ کیجیے۔ انشاءاللہ کل کراچی سے خیبر تک پرامن ہڑتال ہوگی، پورا ملک بند ہوگا، اظہار نفرت کرے گا، حکومتی اقدامات کے خلاف اعلان بغاوت کرے گا، اور اگر حکومت نے اس پرامن ہڑتال سے، اس پرامن احتجاج سے ان کے کانوں پر جوں نہ رینگی، اگر حکمرانوں کو احساس نہ ہوا، اگر عوام کا مذاق اڑانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، تو کل انشاءاللہ اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے کہ بجلی کا بل بھرنے کی استطاعت لوگ نہیں رکھتے، لوگ بجلی کے بل جمع نہیں کروا رہے۔ ابھی ہم نے یہ اعلان نہیں کیا، جب بجلی کے بل جمع نہیں ہوں گے تو بجلی کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی، پھر ایک عام آدمی کی بجلی بند نہیں ہوگی، پھر حکمرانوں کی بجلی بھی بند ہوگی۔ اس لیے حکمرانوں کو حالات کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے، اور میں واضح طور پر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو بجلی کا میٹر نہیں کاٹنے دیں گے۔ بجلی کا میٹر کاٹنے کوئی اہلکار نہ آئے۔ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ان غریب ملازمین سے کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے آپ ان کو بجلی کے میٹر کاٹنے نہ دیں۔ ہم پرامن ہیں، لیکن اگر وہ بجلی کے میٹر کاٹنے آئیں گے تو عوامی غیظ و غضب اس وقت بہت شدت اختیار کر رہا ہے، پھر حالات بدامنی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں نہ آئیں، اور بجلی کے بلوں کی تاریخیں جن کی گزر چکی ہیں ان کو کوئی جرمانہ ہم ادا نہیں کریں گے، اور جب تک بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں کی جاتی یہ احتجاج جاری رہے گا۔ قوم کی حالت یہ ہو چکی کہ اس وقت قوم تڑپ رہی ہے، بلبلا رہی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اپنے گھر کا کچن چلانا ممکن نہیں رہا، ایک تاجر کے لیے اپنی دکان چلانا ممکن نہیں رہا، ایک صنعت کار کے لیے اپنا کارخانہ چلانا ممکن نہیں رہا، اور آپ قوم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قوم اس مذاق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں پاکستان کے غیرت مند تاجروں اور پاکستان کی قوم سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل کی کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو، مراعات یافتہ طبقے کو، اشرافیہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ اب قوم آپ کی عیاشیاں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ قوم بہت قربانیاں دے چکی، اب ان اشرافیہ اور حکمرانوں کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ یہ قوم کو بہت لوٹ چکے، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، آپ بجلی کے بلوں کی قسطوں کی بات کرتے ہیں، قسطوں کے لولی پاپ میں قوم نہیں آئے گی۔ بجلی کے بل کی قسطیں کرنا وہ تو ڈسکوز کے اختیار ہے، بجلی کا بل تو کسی وقت بھی قسط کروایا جا سکتا ہے۔ آپ کیوں قوم کو یہ لولی پاپ دیتے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں کی قسطوں کے لیے IMF سے اجازت لے رہے ہیں؟ بجلی کے بلوں کی قسط تو آئسکو، ڈیسکو، ہیسکو وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے
वज़ीर आज़म साहब, अगर आप कौम को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो संजीदा रवैयों का मुजाहरा करें। पूरी कौम एक ही मुतालबा कर रही है कि बिजली की कीमत के बुनियादी यूनिट के अंदर किया गया इजाफा वो वापस लिया जाए। बिजली के बिल के ऊपर लगाए गए 13 किस्म के टैक्सेस, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिर उसके ऊपर टैक्स और फिर टीवी टैक्स, ये 13 किस्म के टैक्स खत्म किए जाएं। ये जो स्लैब रेट्स हैं इनको यकसा और मुनसिफाना किया जाए। ये कैसा जुल्म है कि एक आदमी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसका बिल अगर 7,000 है तो जो उससे 1 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो बिल डबल हो जाता है। ये कौम के साथ मजाक है। इस मजाक के सिलसिले को बंद किया जाए। और पूरी कौम ये भी मुतालबा कर रही है कि ये जो IPPs के महंगे मुआहदे हैं, ये जो गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत के अंदर बिजली की कंपनियों को नवाजने के लिए IPPs के मुआहदे किए गए, जिन मुआहदों के अंदर एक अजीब मजाक कौम के साथ किया गया कि बिजली पाकिस्तान में बनेगी, उनको रकम की अदायगी डॉलर्स के अंदर की जाएगी। आज डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसका बोझ कौम बर्दाश्त करती है। और फिर एक और अजीब मजाक उस IPPs के मुआहदों के अंदर है कि अगर एक बिजली कंपनी के जिसकी बिजली बनाने की इस्तात 500 मेगावाट है, वो बिजली बनाए या ना बनाए, हुकूमत खरीदे या ना खरीदे, उसको 500 मेगावाट की अदायगी डॉलर्स के अंदर की जाती है। क्या ये इस कौम के साथ जुल्म नहीं है? और ये किन को नवाजा जा रहा है? ये वो 42 और 44 कंपनियां कि जिन्होंने गैर मुल्की कंपनियां जाहिर करके उन पाकिस्तानियों ने जो हुकूमती ऐवानों के अंदर बैठे हैं, ये कंपनियां जाहिर करके इस कौम को लूटने का एक नया सिलसिला शुरू किया। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि बिजली के बिलों के अंदर इजाफा वापस लो। कौम किसी लॉलीपॉप के अंदर नहीं आएगी। और मैं पाकिस्तान के ताजरों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ताजरों ने अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम की कोशिशों को, वो जो हुकूमत की मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए कहीं पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है, उसको भी मुस्तरद कर दिया है। आज शहर कराची ने हड़ताल की रिहर्सल की। शहर कराची के ताजरों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज भी हड़ताल की है और वो कल भी हड़ताल करेंगे। और पूरे पाकिस्तान का ताजर वो कल 2 सितंबर को हड़ताल करेगा। शहर लाहौर की तमाम ताजर तंजीमों ने, अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप, अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप, पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस, कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान कायदे आज़म ग्रुप और अंजुमन ताजरान पाकिस्तान नई मीर ग्रुप ने भी लाहौर शहर में और बाकी जगहों पे हड़ताल का ऐलान किया है। हम उन सब के ऐलानात का खैर मकदम करते हैं, इसलिए कि ये पाकिस्तान की तमाम सनती और तजारती तंजीमों का ही नहीं, पाकिस्तान के आवाम का मसला है। कल पाकिस्तान के अंदर शहर कराची हो, हैदराबाद हो, नवाब शाह सखर और लाड़काना हो, या सिंध के अंदरून सिंध के अजला हो, इसी तरीके से शहर लाहौर हो, गुजरांवाला गुजरात सियालकोट हो, शहर फैसलाबाद हो, या मियाँ वाली मुल्तान मुजफ्फरगढ़ और भक्खर हो, या जनूबी पंजाब में मुल्तान रहीम यार खां विहाड़ी हों, या पंजाब के तमाम अजला और कस्बे हों। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर की तमाम ताजर तंजीमों ने कल हड़ताल का फैसला किया है। मैं पेशावर की तमाम ताजर तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह पेशावर में, पेशावर शहर हो, नौशहरा, मर्दान, सवाबी हो, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, हरजारा और एबटाबाद हो, गर्ज पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी कल बंद होगा। और यही नहीं, बलोचिस्तान के दूर दराज के शहर भी कल बंद होंगे, इसलिए कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। और कल का शटर डाउन इंशाअल्लाह तारीखी होगा और इस शटर डाउन के अंदर अवाम इजहार नफरत करेंगे, इस मरात याफ्ता तबके के ऐलान जंग और ऐलान बगावत करेंगे इस मरात याफ्ता तबके के खिलाफ। और मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान का ताजर अपने हकूक़ की जंग अपने प्लेटफार्म से लड़ रहा है। मैं पाकिस्तान के तमाम ताजरों को कि जिन्होंने 31 को हड़ताल की, जिन्होंने कोई और भी कॉल दी, वो सारे
अल्हम्दुलिल्लाह 2 अगस्त सितंबर को कल हड़ताल करेंगे। मैं उन सब से भी गुजारिश करता हूँ कि कल की हड़ताल के अंदर वो भी अपने शटर बंद रखें, इसलिए कि शटर को बंद करके हम इजहार नफरत करेंगे हुकूमतों की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि बिजली की कीमतों में कौम एहतजाज कर रही है, कौम सड़कों पर निकली हुई है, कौम इजहार नफरत कर रही है। और इन्होंने कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर जालिमाना इजाफा करके एक और बम इस कौम के ऊपर गिरा दिया। अब पेट्रोल 300 से क्रॉस कर चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आम मोटरसाइकिल वाला, एक तालिब इल्म, एक किसान, एक मजदूर, वो अब मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता, वो अब गाड़ी भी नहीं चला सकता, वो रिक्शा और टैक्सी वाला वो अब अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता। इसलिए हुक्मरानों के होश के नाखून लेने होंगे। ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, 1.5 लाख सरकारी गाड़ियाँ, 200 लीटर से 2000 लीटर तक ये मुफ्त पेट्रोल, ये सब बंद करना होगा। ये बैरून मुल्क इलाज, ये बैरून मुल्क दौरे, ये VIP कल्चर, ये बंद करने होंगे। और वजीर आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी। किराए ते मकान है, छत तू चौंदे ने जिस बारिश आती है। 47,000 रुपया बिल है, जाके वेख सकते हो। कोई फ्रिज नहीं, कोई कपड़े धोने वाली मशीन नहीं, कोई चीज, सिर्फ एक फर्शी पक्खा वे ते एक बत्ती जो भी एनर्जी सेवर असी लाया कि थोड़ा आवे दा ते एक साडी मोटर है, ओदा 47,000 रुपया। क्यों, किस वजह तो आया है? इन्हां बगैरतां नूं पुछना चाहिदा ना तलियां नूं, क्यों इन्ना बिल सानूं इन्हां तोड़िया है? ओदी वजह बिल चोरन दी। मजदूरी मैं करनी है, 15,000 मेरी तनख्वाह है। सर्विस च मैं कारखाने च लगी हाँ ते ओ मैं 15,000 विच किन्नी होर पावां ते मैं कित्थों मंग के लियावां, कित्थों लियावां? ये दस्सण इस गल दा जवाब देण। असीं कित्थों इन्ना बिल तारीए? असीं बिल छिल कोई नहीं तारना। जेड़ा मीटर लाण आया ओदे मौत दा या ओदे लवांदरे लाण दे जिम्मेदार हो दिंदे, असीं कोई नहीं। लेकिन असीं घट नहीं करना, असीं इन्ना क मारांगे, इन्ना क मारांगे, इन्हां नूं पता लगेगा कि साडा वर्कर कुट खा के आया, इन्हां नूं भी तकलीफ होवेगी जिस तरह जे सानूं इस बिल दी वजह तो होंदी। मेरा भी चेक करो बिल, ते मैं बेवा औरत हां। मेरा 6 साल तो जवान पुत्र दा एक्सीडेंट होया, मंजी ते पिया 2 साल कोमे च लिया ते 6 साल मंग तंग के मेरियां रोटियां होटल ते मुफ्त लगियां ने, मैनूं लोग सौदे देंदे ने, मेरी लोग मदद करदे ने, मेरा कोई सहारा नहीं खुदा दी जात तो बगैर। ए देखो ते मेरा खुदा दी जात सिलेंडर तो कोई सहारा नहीं। बाजी ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ, ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਹਾਲਤ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ 20 ਲੱਖ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸੌਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਦਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ? 500-600 ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ? ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ ਔਰ ਬਗੈਰਤ ਵੀ ਨੇ। ਨੀਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰਤ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਘੁੰਮਣ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਪਾੜ ਚੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ। ਨੀਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਪਾੜ ਚੋਰ ਨੇ। ਚੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਹੁਣੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਮਾ ਜਿੰਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਭਰੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਭਰੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਵੀ ਬਿੱਲ 25,000 40,000 ਕਿੱਥੋਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਖੋਲਿਆ। हमारे जिस्म से खून निकाल ले, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पड़ा हुआ है। इन लोगों ने जो 75 साल से इस 25 करोड़ आम को तमाशा बना। इन सियासी जमातों से हम तंग हैं, इस जमहूरियत से तंग हैं। ये अगयार के दल्ले हैं, अगयार के यार। अवाम इस वक्त जो है मजबूरियों और मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। बिजली के
बड़े बड़े बिलों ने अवाम का भरकस निकाल दिया। सियासियां ये कर रहे हैं, टैक्स हम पे लागू कर रहे हैं। अब हमारे ये लोगों में सकत नहीं है, हमारे ताजरों का पट्टा बैठ गया है, कोई गाहक नहीं है, हम तंग आ गए हैं, लोग अपने बच्चों को मारने पे मजबूर है। हमारा ये लाया अमल है, या हमें बता दें कि हम IMF के गुलाम हैं या हम पाकिस्तान के शहरी। पाकिस्तानियों सुबह से शाम वो चीख चीख के कहता होता था कि मेरे पाकिस्तानियों मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आज ये वो मौका आ चुका है। देखें आज सारी आवाम रोडों पे निकली हुई है। क्यों निकली हुई है? शायद वो इमरान खान की उस टाइम वो बात मान लेते, सुन लेते, तो आज ये वाकया ना होता, आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठे ना होते। ये एक शख्स है, ये देखें सर से पांव तक सवालों से भरा हुआ है, सर से पांव तक सवालों से भरा, लेकिन अफसोस के ये सवाल नहीं पूछ सकता। जब सवाल पूछता है तो गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार फिर सवाल पूछता है तो उसके घर में पुलिस घुस जाती है। अगर ये जो इन्होंने बिजली का रेट कम ना किए, जो 200 यूनिट से ऊपर का टैरिफ जो उन्होंने 6 महीने का फिक्स कर दिया वो इन्होंने खत्म ना किया, तो आज हमने रहीम यहाँ में एक सिर्फ छोटा सा चौक बंद किया है। आगे हम पूरा शहर, उसके बाद हम GT रोड बंद करेंगे और पूरा पाकिस्तान का सोल्यूशन भी उनके पास कोई है। चीफ जस्टिस साहब के पास कोई सोल्यूशन है कि इस गरीब आवाम को कुछ सहारा दे सके, वो इनके लिए कुछ सोच सके। ये छोटे छोटे बच्चे साथ खड़े हुए हैं, इनको देखें, इनके बारे में कुछ सोचें कि हमें अगर इतबार है तो आर्मी के ऊपर है। लोगों का ख्याल है कि 10-15 साल के लिए आर्मी हुकूमत आ जाए, वो हमसे खून भी मांगेगी, हम देंगे, लेकिन इन सियासी जमातों से हम तंग हैं, इस जमहूरियत से तंग हैं। ये अगयार के दल्ले हैं, अगयार के यार हैं। अवाम का सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है कि जो हुकूमत की जानिब से ये बड़े बड़े बिल भिजवाए जा रहे हैं, इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के नामालूम जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी।